Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 8.1 questions, right? And in today's session we are going to discuss two most important theorem of this chapter. That is midpoint theorem and converse of it. Okay, so let's start today's session. So see, the midpoint theorem says what? This is the theorem for triangle. Okay, and this is related to the midpoints of two sides of a triangle. So let's see what it is. The theorem says the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. ओके तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इस थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट्स लेते हैं और उनको ज्वाइन कराते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आपको मिल रहा है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा. ओके तो सपोज अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, जनरली हमने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी और साइड्स ए बी एंड ए सी के हम मिड पॉइंट्स ले रहे हैं. सपोज ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी एंड F is the midpoint of side AC. So if we join these midpoints of two sides, so we are getting a line segment. So this line segment is parallel to the third side BC and is half of it. Okay. So what we have to prove here? प्रूव क्या करना है कि ये लाइन सेगमेंट ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. थर्ड साइड आपकी बी सी हो गई. क्यों? यहाँ पर ये जो दो साइड्स हैं उनके तो हम मिड पॉइंट ले रहे हैं, उनको ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है. सो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी. This we have to prove here. Okay, so see, to prove this theorem first we have to do little construction here. What if we extend this line segment which is joining the midpoints of two sides in this direction? Okay, so if you are extending it in one direction, so we can name it as line M. Okay, now what we have to do? We have to draw a line through this point C parallel to side AB like this. Suppose its name is R. Okay? क्या किया हमने? EF को एक्सटेंड किया और उसको नेम दे दिया M और C के थ्रू C से पास होते हुए एक लाइन L ड्रॉ करनी है जो कि क्या है? साइड AB के पैरेलल होगी. ओके Suppose these two lines intersecting at point D. Okay. Now see. So first write the construction part which we have done here. Extend EF and draw a line L through C parallel to side AB. Okay, that is intersecting. That is intersecting line M at point D. ओके C के थ्रू एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है जो एक्सटेंडेड लाइन को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. अब देखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. दैट मीन्स EA इज इक्वल्स टू EB. दिस EA इज इक्वल्स टू EB. Okay, by construction what we have? This CD is parallel to AB. अगर ये लाइन इस AB साइड के पैरेलल है तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा. तो अगर हम CD को कंसीडर करते हैं that would also be parallel to this side AB. Okay,
सी डी ए बी के पैरेलल होगी। अब देखिए ये जो एंगल्स हैं ए बी एंड सी डी के लिए ए सी ट्रांसवर्सल का वर्क कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, और क्या है, ये इन दोनों एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, और देखिए एफ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए एफ किसके इक्वल होगा, एफ सी के। तो देखिए एंगल साइड एंगल, two angles and the included side of two triangles are equal, then the triangles will be congruent. Okay, so by angle side angle congruency criterion these two triangles will be congruent. Okay, so congruent होंगे तो इसका मतलब इनके corresponding parts means EF किसके इक्वल होगा, FD के, एंड EA किसके इक्वल होगा, CD के। ठीक है, अब देखिए EA CD के इक्वल है और EA EB का भी इक्वल, इसका मतलब EB और CD आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए AB CD के पैरेलल है, मीन्स EB CD के पैरेलल है और इक्वल भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब EBCD आपका पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड वुड बी पैरेलल, इट मीन्स ED इज पैरेलल टू BC. Since ED is parallel to BC, it means the part of it means EF will also be parallel of this. Okay, तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना था। तो देखिए इसको लिखना कैसे, से since L is parallel to AB, that implies what, CD is parallel to AB. Okay, so angle EAF, so in triangle AEF and CDF, ट्राइंगल CDF मीन्स इन दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल हैं, इसका मतलब एंगल EAF इज इक्वल्स टू एंगल DCF. वाई, बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Okay, and since F is the midpoint of AC, that's why AF is equals to FC. Okay, F क्या है, AC का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, तो इसलिए AF किसके इक्वल होगा, FC के. नेक्स्ट एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFD. दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, ये दोनों एंगल्स की बात करें तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया कि एक ये एंगल, दूसरा ये एंगल एंड दिस इंक्लूडेड साइड आर इक्वल of these two triangles. Okay, so therefore triangle AEF is congruent to triangle CDF. By ASA rule. Okay, by ASA congruency criterion these two triangles are congruent here. Okay, so their corresponding parts means remaining parts will also be equal. So from here we can write AE is equals to CD and EF equals to FD. EF equals to DF.
ठीक है, बाई CPCD। ठीक है, ये पार्ट, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, EF DF के इक्वल होगी, तो ये बाई CPCD प्रूफ हो गया। अब देखिए AE किसके इक्वल है, EB के, एंड AE also equals to CD. So right here, since AE equals to CD, name this as equation number 1, and AE is equals to BE, name this as equation number 2. So write here, from equation 1 and 2, BE equals to CD. ओके, AE आपके CD के इक्वल है, ये अभी हमने प्रूव किया, और AE EB के इक्वल है, क्यों, E क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली हाफ पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया कि दिस पार्ट BE इज इक्वल्स टू CD. ओके, सो राइट हियर इन क्वाड्रिलेटरल EBCD, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल EBCD, one pair of opposite sides are equal and parallel. Means EB equals to, or we can write BE equals to CD, and BE is parallel to CD. Why? By कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि CD AB के पैरेलल है, इसका मतलब CD BE के भी पैरेलल है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल अभी हमने प्रूव कर दिया। इसलिए इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, therefore quadrilateral EBCD is a parallelogram. ओके, ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो जो रिमेनिंग पेयर है ऑपोजिट साइड्स का वो भी पैरेलल होगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट, DE इज पैरेलल टू BC। ओके, DE BC के पैरेलल होगा। इट मीन्स EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो एक पार्ट हमने ये शो कर दिया कि EF BC के पैरेलल है। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि EF इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC। EF क्या है, हाफ भी है BC का। तो देखिए EF और FD हमने इक्वल प्रूव किया अभी, सिंस EF इक्वल्स टू FD, दिस वी हैव प्रूव्ड। ओके, दैट मीन्स F is the, that means we can write it EF is equals to half of ED। ठीक है, EF क्या है, FD के इक्वल है, इसका मतलब EF क्या है, ED का हाफ है। और देखिए ये क्या है आपका पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, ये पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगी। इसका मतलब ED की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC, और EF is equals to half of BC. Why? Because ED is equals to BC. ओके, EBCD हमने एक पैरेललोग्राम शो कर दिया, तो ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। तो वहाँ से क्या है कि ED किसके इक्वल होगी, BC के। तो EF अगर ED का हाफ है तो BC का भी हाफ होगा। तो यही हमें प्रूव करना था। नाउ सी द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हाट द कन्वर्स इज, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट
of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ओके, अगर किसी ट्राइंगल में सपोज यहाँ पर ट्राइंगल है ए बी सी और इसकी किसी एक साइड का हम मिड पॉइंट लेते हैं, सपोज ए बी का मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट. अब इस मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो क्या है, दूसरी साइड के पैरेलल है, सपोज बी सी के पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से. ओके, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ओके, तो गिवन पार्ट यहाँ पर क्या हो गया कि ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है और ये लाइन, सपोज इसको नेम दे दीजिए आप, लाइन एल जो कि इस मिड पॉइंट से पास हो रही है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है. तो दो चीज़ यहाँ आपको गिवन है, एक तो मिड पॉइंट, दूसरा पैरेलल. अब प्रूव क्या करना है कि ये लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. सपोज दिस पॉइंट वेयर दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस साइड इज एफ. तो एफ क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब ए एफ इक्वल्स टू एफ सी होगा. अगर ये लाइन इस लाइन साइड ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो इसका मतलब ए एफ एफ सी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, क्या कि ये लाइन तो आपके ऑलरेडी ड्रॉन है और सी से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि क्या है, ए बी के पैरेलल होगी इस तरीके से. ओके, सपोज दिस लाइन इज एम एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन एल एज एट डी. ओके, सी से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि लाइन साइड ए बी के पैरेलल है और लाइन एल को डी पॉइंट पर कट कर रही है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कि आप क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में. प्रूफ हमें ये करना है कि ए एफ इक्वल्स टू एफ सी. अगर हम ये प्रूव कर देते हैं इसका मतलब ये लाइन एल ए सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मीन्स बाइसेक्ट कर रही है. ओके, और अगर इसे एल बाइसेक्ट्स ए सी, ये लाइन जो हम मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं वो ए सी को बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. और गिवन क्या है हमें यहाँ, गिवन ये है कि ई क्या है, मिड पॉइंट है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स ए ई इज इक्वल्स टू ई बी. ठीक है, ई अगर ए बी का मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, ए ई बी क्या है, इक्वल है, मीन्स ई पॉइंट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये गिवन है. और हमें क्या गिवन है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. ओके, और लाइन एल drawn from E is parallel to BC. E पॉइंट से जो हम लाइन L ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, BC के पैरेलल है. सो दिस मच वी हैव गिवन हियर. ओके, और कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर की है. कंस्ट्रक्शन हमने ये की है कि ड्रॉ a line M through point C parallel to AB and intersecting line L at D. ओके, ये कंस्ट्रक्शन हमने की है कि सी के थ्रू एक लाइन एम ड्रॉ करनी है जो ए बी के पैरेलल होगी और इस लाइन को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. अब देखिए, सी सिंस दिस लाइन एम इज पैरेलल टू ए बी, दैट मीन्स इट्स पार्ट सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए बी. ओके,
that also has mean what? CD is parallel to EB. ओके अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, इसका मतलब CD इज पैरेलल टू EB. ओके और पहले से ही आपको क्या दे रखा है कि E से जो लाइन L पास हो रही है वो क्या है? BC अदर साइड के पैरेलल है, इसका मतलब लाइन L इज पैरेलल टू BC. इट मीन्स इट्स पार्ट if EF is parallel to BC और we can say ED is parallel to BC. तो देखिए यहाँ पर अगर इस क्वाड्रिलेटरल को हम देखें EBCD, इसकी बात करें तो देखिए EB CD के पैरेलल है एंड ED BC के पैरेलल है, मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल हेयर. तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम. ओके पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. इसका मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल होगी. ओके और आपको गिवन क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो EB इज इक्वल्स टू EA. ये साइड इस साइड के भी इक्वल है और ये साइड इस साइड के भी इक्वल. इट मीन्स EA एंड CD आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो अगर हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF, तो यहाँ पर एक साइड आपकी ये इक्वल हो गई, ठीक है, और ये दोनों लाइंस आपकी क्या है? पैरेलल है. तो ये एंगल्स आपके क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर. सो इन केस ऑफ पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर आर एंगल्स आर इक्वल. तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे. और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट. और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो बाय AAS क्राइटेरियन दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल. तो अगर हम AF को लें तो AF FC के इक्वल हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है तो देखिए लिखना कैसे है. सिंस line L is parallel to BC, so this implies what? ED is parallel to BC. Okay. Next, since M is parallel to line M is parallel to AB side AB, that means CD, that is the part of line M, will also parallel to AB, and this is also implies so this is also implying what? CD is parallel to BE. ओके लाइन M AB के पैरेलल है तो M का जो पार्ट है CD वो भी AB के पैरेलल होगा. अब CD AB का पार्ट क्या है? BE, इसका मतलब CD BE के भी पैरेलल होगा. ठीक है सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए. सो फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 quadrilateral EBCD is a parallelogram because its opposite sides are parallel. ओके यहाँ पर हमने क्या शो कर दिया कि ED BC के पैरेलल है, BE CD के पैरेलल है, मीन्स अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल है. तो आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है अब क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ठीक है तो EBCD आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. सो दिस इज इम्प्लाइज व्हाट? BE is equals to CD. BE और CD क्या है? ऑपोजिट साइड्स हैं. तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BE is equals to CD. नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3. ओके एंड सिंस E is midpoint of AB, that's why
BE is equals to AE from equation BE is equals to AE, तो इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो अब थर्ड और फोर्थ को देखिए, फ्रॉम 3 and 4 BE CD के भी इक्वल है और BE AE के भी इक्वल है। इसका मतलब AE किसके, CD के इक्वल होगा, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, आगे देखिए इसके, तो एक साइड इस ट्राइंगल में, सो राइट इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF AE इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, एंड एंगल EAF इज इक्वल्स टू एंगल DCF। ये एंगल इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। एंड एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। सो ट्राइंगल AEF is congruent to triangle CDF by angle side congruency rule. Okay, by AAS दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके रिमेनिंग पार्ट मीन्स AF इज इक्वल्स टू FC। ओके, AF इक्वल्स टू FC बाय CPCD। सो इसका मतलब क्या है, AF FC के इक्वल है, इसका मतलब F क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और वी कैन से line L bisects AC। ओके, लाइन L क्या है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही आपका स्टेटमेंट था कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, यही आपको प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड हियर। So that's all for today's session, in which we have discussed two most important theorem. First one, midpoint theorem, and the second one, converse of it. Okay, so if you have any query, doubt related to these theorems, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss exercise 8.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.